Welcome everyone to the virtual class conducted by Mother Ethna School. Today I am going to start chapter 15, Air Around Us. So the very first question arises here, what is air? Air होता क्या है? So air is an invisible gaseous material. Invisible मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. That surrounds the earth, जो अर्थ को पूरी तरह से कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड एयर एंड इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. यानी मेजरली कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाउ व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? हमने अभी बात की कि पूरे अर्थ को कवर करके रखते हैं. सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? जहाँ पर एयर ने पूरी तरह से अपने आप को कवर कर रखा है, जो अर्थ पर पूरी तरह से surrounded है. Air can be found in all places. Although we cannot see here air, we can feel it. यानी एयर हर जगह पर है, हम देख नहीं सकते एयर को, पर हम उसे फील करते हैं. Now what is wind? एयर समझ में आया कि ठीक है, गैसेस होती हैं, गैसियस मटेरियल होता है, लेकिन विंड क्या होता है? जब हवा चलती है, the movement of air or when the air is in motion, that is called wind. Air takes up space and is found in water and dirt. Air space carry करते हैं, space occupy करती है, और सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि पानी में, गंदगी में भी, डस्ट में भी हमें क्या मिलती है? एयर मिलती है. बात यह है कि एयर में कौन कौन सी गैसेस रहती हैं. तो एयर में होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू मोर गैसेस विच मेक अप एयर. इट मे ऑल्सो कंटेन सम डस्ट पार्टिकल्स. सो वी लिव ऑन अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ एंड लाइफ ऑन अर्थ इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर. एक्वेटिक स्पीशीज यानी कि जो एनिमल्स विच लिव in water, the animals or plants which live in water, they breathe through dissolved air in water, and plants and animals rely on each other for oxygen and carbon dioxide exchange from the air. Like we people need oxygen for breathing, and plants need carbon dioxide for the preparation of food. So plants and animals, they exchange the gases, so we get oxygen from plants and plants get carbon dioxide from us. Now we have different layers of atmosphere. अभी हमने बात की थी कि atmosphere is the blanket of gases which surrounds the earth. Now the main constituents of air. The main components of air are nitrogen and oxygen. Nitrogen makes up about 78% of the air we breathe. Nearly 21% of the air is made up of oxygen. Carbon dioxide, water vapor, dust particles and other gases make up the remaining 1%. So in total we get 100%. So the composition of gases in the air varies by location. यानी ये टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन हो सकता है. 99% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की वैल्यू रहती है और 1% क्या होता है? रिमेनिंग गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट. Now nitrogen. Why we need nitrogen? तो plants require nitrogen in order to grow. Plants को क्या चाहिए? Nitrogen चाहिए for proper growth. And nitrogen also stops burning. यानी जलने से रोकता है. Next, oxygen. All living things use oxygen to breathe and to help them burn food. यानी कि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए हमको? ब्रीदिंग के लिए चाहिए. और जो भी बर्निंग प्रोसेसेस होती हैं, इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल तो दैट बर्निंग प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस. सो बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. देन कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड. Photosynthesis is carried out by green plants. It is emitted when you burn something. Then we have water vapor. Water vapor is formed when water evaporates. Water vapor कब बनते हैं? जब पानी evaporate होता है. Humidity refers to the amount of water vapor in the air.
varies from place to place as well as during the day and night in the same location. So as we all know that water cycle is very important for our atmosphere, for all of us. So for that, water vapors plays a very important role. Now the last is dust and smoke. Smoke comprises a small number of gases as well as fine dust particles. It is really dangerous. जब भी हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं तो स्मोक विल टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, लाइक यू आर रनिंग द व्हीकल्स, सो जो उसमें से धुआं निकलता है दैट इज़ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल टू इनहेल डायरेक्टली. द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर चेंजेस थ्रू आउट टाइम एंड फ्रॉम लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर? बर्निंग इज़ एडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी बर्निंग का प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है? एयर की हेल्प से होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन एयर. सो बर्निंग इज़ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बर्निंग का प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट, ब्रीदिंग नेसेसिटीज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो सांस लेते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज द ऑक्सीजन विल गेट फ्रॉम द एयर ओनली. Next, plants require air to produce food. Now, how this happens? We inhale oxygen. When we inhale oxygen, we release carbon dioxide. When we release carbon dioxide, green plants use them to prepare the food. So ultimately, life is possible because of food. We all need food to survive. So if there is no oxygen, there is no carbon dioxide. There is no carbon dioxide, then there is no food. Birds fly across the air. Air pressure also causes planes to rise in the air. यानी birds किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं? एयर की प्रेजेंस में. और जो भी ये एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, ये भी किसकी हेल्प से चलते हैं? ड्यू टू एयर. द विंड इज़ द टर्म फॉर मूविंग एयर. हमने विंड की बात की थी. विन द एयर इज़ इन मोशन और द मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड. तो जो विंड मिल होती है वो रोटेट करती है बिकॉज ऑफ द विंड ओनली. एयर हेल्प्स इन द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ स्वेट विच कीप्स अस कूल, यानी कि एयर क्या करती है? जो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसको इवेपोरेट करता है एंड वी फील कूल. सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड आई थिंक यू ऑल understand the chapter quite well. Thank you everyone.